Hello friends, welcome once again. In this video, we will take one of the CIQs of the personal interview, that is CIQ on spare time, hobbies and interests and sports and games. Now you understand this is important. This forms the core part of the assessment interview technique, right? Now let's go through the CIQ on spare time, hobbies and interests and sports and games. It reads, that gives me a good idea about your education, family, and related matters. Now, these are the two earlier CIQs, CIQ on education, CIQ on early home background, right? So, that gives me a good idea about your education, family, and related matters. Now, please tell me how you spend your spare time. What are your hobbies? When and how did you choose these? How do you compare your present level, that is now, in respect to your hobbies since the time you started? What are the games and sports in which you have participated in the school or college with family members and with neighborhood friends? Your daily routine, both on a working day and on a holiday, and about your reading and writing habits and TV watching habits. Now, ये आपको कानों से सुनना है. यहाँ आई एम शोइंग इट ऑन द स्क्रीन. देयर ही विल स्पीक. यू हैव टू एक्टिवली लिसन एंड इमीडिएटली स्टार्ट responding, right? So I'll request you to kindly pause this video और इस CIQ के ऊपर एक अपना response को मुझे record करके भेजो on my number. My number is available on this video. Otherwise I'll give it here. 9090099035. Share करना and let's see how nicely you're able to speak. Now this CIQ is a little difficult because many cases, in case you don't have hobbies and interest, or if you don't have reading habits, or if you don't engage in sports, आपको इसमें बोलने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा and one complete CIQ will go down the drain, है ना? And this gives a lot of indications to the to the interviewing officer, which I'll talk in the subsequent slides. So पहले मुझे आपका ये video आने दो, pause it and make a video, right? Now, before we move further into the CIQ, let me tell you that AFOSP online batches are available, and you have 4 weeks, 8 weeks, oblique 12 weeks ka online composite batch, which consists of both the SML and the SSB. SML is essentially the leadership and personality development module, which actually the SSB is testing, and also the SSB testing tool, that is a psych test G2 interview, जो कि SSB के testing tools है. The option is 4 weeks, 8 weeks and 12 weeks, right? इसके अलावा you can go through the full psychological test assessment, where entire psychological test consisting of 12 TAT, 60 WAT, 60 SRT, and the SD will be tested, correlated, and आपके अंदर consistency या lack of consistency को explain किया जाएगा, both at the level of the SSB testing tool and at the level of your personality and the 4 dimensions of personality, जिसके कारण ये gap आ रहा है. So that'll be a live feedback. You'll get video recording of that. इसके अलावा you can actually go through your full personal interview in depth, and उसके ऊपर आपका analysis भी और feedback भी दिया जाएगा, and the areas to improvement will be one-on-one. Video recording will be available. उसके अलावा जो भी लोग self preparation कर रहे हैं उन लोगों के लिए every Saturday we are holding this free demo class every Saturday. तो उसके लिए अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 9090099035, है ना? सेंड मी अ व्हाट्सएप और सेंड मी अ कॉल एंड यू विल गेट द डिटेल्स एंड 500% क्लैरिटी के साथ जब आप एफर्ट्स लगाओगे तो आपके एफर्ट्स में अलाइनमेंट आएगा. एफर्ट्स में जब अलाइनमेंट आएगा तो आपका परफॉर्मेंस ऊपर जाएगा, और जब आपका परफॉर्मेंस ऊपर जाएगा तब डेफिनेटली आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बिल्कुल हाई होना शुरू हो जाएगा. नो रोट मेमोरी, ओनली लॉजिक, राइट? सो विद दैट एज द स्टार्ट, सो देखते हैं कि इस CIQ एंड हॉबीज एंड इंटरेस्ट एंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स में ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर देखना क्या चाहता है एक कैंडिडेट को. सो लेट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट. यू कैन मेक नोट्स ऑफ इट एंड देन सी कि जो वो देख रहा है वो आपके अंदर दिखेगा. एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है एंड प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, उसके बीच का डेल्टा कितना है, दैट वी विल आइडेंटिफाई. सो फर्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट, है ना? इन योर day-to-day life activities, how do you organize your studies, how do you organize your family responsibilities, and how do you practice your sports and games? से उसके लिए कैसे टाइम निकालते हो? टाइम मैनेजमेंट, स्टडीज, SSB प्रिपरेशन, घर में मदद, एंड प्लस हॉबीज एंड इंटरेस्ट में, राइट? सो वर्क लाइफ बैलेंस बोल सकते हो या स्टडी एंड लाइफ बैलेंस बोल सकते हो. So this is what they are looking for. Next is self-initiative and passion.
कि आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इन द नेम ऑफ हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, या आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, स्वतः से कर रहे हो, या किसी दबाव में कर रहे हो, क्या वास्तव में आपका पैशन है या एक्टिंग है ना। बहुत सारे लोग एसएसबी में आके फेक बोलते हैं हम ये करते हैं वो करते हैं, बट एक्चुअली करते कुछ नहीं है। सो दे आर सिंपली फेकिंग इट, थिंकिंग कि ऐसे फेक करने से इंटरव्यूइंग ऑफिसर इम्प्रेस हो जाएगा, बट यू विल हैव टू थिंक, इज दैट द वे? नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड डेप्थ। अगर ये वास्तव में आपका पैशन है, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो, तो आपके उस एक्टिविटीज में कंसिस्टेंसी दिखाई देगा। अनलेस यू हैव सर्टेन अदर कमिटमेंट्स, इसके कारण नहीं कर पाते हो, यू विल बी डिसिप्लिन, आप टाइम पे उठोगे, टाइम पे सब करोगे, बिकॉज यू हैव टू पे अटेंशन टू दोज हॉबीज एंड इंटरेस्ट विच मैटर सो मच टू यू एंड यूर ड्रिवन बाय पैशन, है ना। और उन चीज़ों के ऊपर जब बात करोगे आपके अंदर ऑटोमेटिकली डेप्थ आएगा, क्योंकि वो विषय आपके दिल के बड़े करीब है। अगर इफ़ आई हैव एन हॉबी, उस हॉबी के बारे में जब मैं बात करूंगा तो मैं उसके बहुत डीप में बात कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम ए पैशनेट पर्सन इन टू दैट। बट अगर इन एब्सेंस ऑफ दैट, अगर मैं बड़ी बड़ी बातें बोलूँ लेकिन डेप्थ ना मिले, तो मैं एक खोखला व्यक्ति हूँ, शैलो बात कर रहा हूँ, और मैं एक बनावटी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि मेरी वास्तविकता नहीं है, एक मुखौटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज सोशबिलिटी एंड टीम वर्क। अगर आपका ऐसा हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट है जिसमें आप लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ता है, तो नेचुरली क्योंकि आप एक पैशनेट बंदे हो, आपकी हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट है, तो आप लोगों के साथ आपका उठना बैठना, तो आपका EQ यानी इमोशनल कोशेंट या सोशल इंटेलिजेंस या सॉफ्ट स्किल बहुत बढ़िया होगा, और आप टीम में काम कर सकते हो। टीम में काम करने का मतलब अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पीछे करके ग्रुप के इंटरेस्ट को आगे करना। सो ये ना GTO में ग्रुप डायनेमिक्स में बोलते हैं कि कैन यू सबऑर्डिनेट योर सेल्फिश इंटरेस्ट एंड पुट फॉरवर्ड योर ग्रुप इंटरेस्ट, है ना। तो टीम वर्क में काम करने की काबिलियत एंड योर सोशल स्किल्स का भी एक अंदाजा लगता है। नेक्स्ट इज लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग गेम्स खेलते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, या जो लोग किसी टाइप का हॉबी परस्यू करते हैं, नेचुरली उनके अंदर एक पोटेंशियल आता है लीड करने का, टीम कैप्टन, कोऑर्डिनेटर, कोई लेस केपेबल पर्सन्स को आप एम्पावर कर सकते हो, आप इंस्पायर कर सकते हो, आप बदलाव का चेंज कर सकते हो, आपका एक शेयर्ड विजन कर सकते हो, आप मोटिवेट कर सकते हो, इन्फ्लुएंस करते हो। तो ये बहुत सारे स्किल्स जो कि फैक्टर 3 का लीडरशिप स्किल्स है, वो यहाँ पे डेवलप होता है। और आप जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो अलग अलग पोजीशन का, उसमें आपको उत्तरदायित्व लेने की जिम्मेवारी आती है, और वो चीज़ें आपके कम्युनिकेशन में आता है, आपका TAT रेस्पॉन्सेज में भी आएगा, और वो चीज़ को बहुत अच्छे से इंटरव्यू ऑफिसर गेज कर सकता है। नेक्स्ट इज मेंटल हैबिट्स एंड आउटलुक। क्योंकि आप इन पैशंस में इतना इन्वॉल्व हो, बुक रीडिंग में इतना इन्वॉल्व हो, आप अपने एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, कि आपका एक हेल्दी माइंडसेट आ जाता है, और समय वेस्ट नहीं करते हो, और एक प्रोडक्टिव एंगेजमेंट में रहते हो, बजाय कि सोशल मीडिया में टिकटॉक कर रहे हो और कच्चा बादाम कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो योर distractions will be minimized, your mind will be more stable and focused, and you can use your time more productively. तो that's it, और वो आपके SSB के प्रिपरेशन में भी दिखेगा, because you know how to manage your time well. Now आपको मैं एक सुझाव देता हूँ कि इसको जब तैयारी करो, तो आपको एक स्ट्रक्चर में तैयारी करोगे तो इट विल बी बेटर। सो आई गिव यू हाउ टू रेस्पॉन्ड टू दिस CIQ ऑन स्पेयर टाइम, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। रेस्पॉन्ड का मतलब मैं कोई सैम्पल रिस्पॉन्स नहीं देने वाला जैसे बाकी कोचिंग में मिलता, बट आई गिव यू स्ट्रक्चर, किस तरह से इसके ऊपर सोचना है, और उन विचारों को पिरो कर अपने रिस्पॉन्स को तैयार करना, अपना इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को समझते हुए। सो पहला है, अगर आप किसी हॉबी या इंटरेस्ट को बात करते हो, तो आप उसका ओरिजिन कहाँ से, किस समय से, लाइफ के किस स्टेज में आप उस हॉबी में इंट्रोड्यूस हुए, किसने किया, और उसका प्रोग्रेस जब आपने ज्वाइन किया या उस हॉबी को स्टार्ट किया, उससे आज तक कैसे उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। सो इफ अगर गिटार प्ले करते हो तो कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसने ट्रिगर किया, और आज आपका क्या स्टेटस है, और किस लेवल पे आप पहुँचे हो, क्या कोई अचीवमेंट है, स्पोर्ट्स है, जो भी है, व्हाटएवर, सिंगिंग है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने इंट्रोड्यूस किया, और शुरू से आज तक की जर्नी क्या है, हाउ मच is the improvement in terms of the skills that you've been able to acquire, right? Sports and games, जो अभी आप खेलते हो, और खेलते हो तो किस लेवल पे शुरू किया, स्कूल में था, कॉलेज में था, गली क्रिकेट था, जो भी है, किस लेवल तक पहुंचे, और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है आपके। इट कैन ऑल्सो भी कैजुअल, कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को कुछ अचीवमेंट नहीं है लेकिन मैं खेलता हूँ, एंड खेलते हो तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ रूल्स क्या है, उसके डायमेंशंस क्या है, उसका वो क्या है, क्या सब पता होना चाहिए। एंड इफ यूर अ सीरियस प्लेयर, जिसमें अगर आप नेशनल मिला है, इंटरनेशनल लेवल पे खेले हो, या कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले हो, और या आपका कोई स्टेट लेवल पे अचीवमेंट है, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट क्वाइट इन डेप्थ,
शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे इंप्रूवमेंट हुआ, कैसे टैलेंट रिकग्नाइज हुआ, कैसे टैलेंट को नर्चर किया, ऑल दोज थिंग्स, राइट. नेक्स्ट इज रूटीन ब्रेक डाउन, है ना, ऑन ए वर्किंग डे एंड ऑन ए हॉलीडे. पूछते भी है कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, उसका पूरा विवरण दो. एंड स्पेशली इसमें अगर आपने एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, उसका डिटेल बताओ कितना उसके अंदर टाइम इन्वेस्ट किया है. स्पेशली अगर आपका कम्युनिकेशंस वीक है, करंट अफेयर्स वीक है, कंटेंट नहीं है, या कुछ और नहीं है, या पर्सनालिटी के अंदर कुछ डिफिशियंसीज है, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई किया, कि कितना समय उन चीज़ों पे देखते हो, करंट अफेयर्स के ऊपर कितना टाइम देते हो, न्यूज़पेपर कौन सा रीड करते हो, उस न्यूज़पेपर को क्यों रीड करते हो, उसका एडिटर कौन है, कहाँ से पब्लिश होता है, दूसरा न्यूज़पेपर और इस न्यूज़पेपर कंपेयर करो. न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो क्यों नहीं पढ़ते हो, करंट अफेयर्स अपडेट नहीं करते तो क्यों नहीं करते हो, क्यों सोचते हो कि उसका बिना चल जाएगा. यू विल बी क्वेश्चन, प्रोबिंग क्वेश्चन में. सो आपका रूटीन ब्रेक डाउन ऑन ए वर्किंग डे या ऑन ए स्कूल डे, दैट इज एकेडमिक डे, एंड ऑन ए हॉलीडे. संडे को क्या करते हो, कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो फिजिकल डेवलपमेंट के, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए क्या करते हो, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे रिश्तों को निभाते हो, एंड आपका स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर के बारे में आप क्या जानते हो, आपके कोर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है. सो breakdown of your routine on a working day and on a holiday, इसको आप करना. नेक्स्ट इज रीडिंग, राइटिंग एंड टीवी वॉचिंग हैबिट्स. इसमें एक और इंक्लूड कर दो सोशल मीडिया. किस तरह की चीज़ों को लिखना और पढ़ना पसंद करते हो, क्या आपको कोई राइटिंग हैबिट है, जर्नल राइटिंग करते हो, या आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ की करते हो, कोई ऐसे लिखते हो, ब्लॉग लिखते हो, किस टाइप के बुक्स को रीड करते हो, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए किस टाइप के बुक पढ़े, लास्ट 3 बुक के नाम बताओ, उसको पढ़ के क्या उसके अंदर कोर वैल्यू पता चला, क्या कोर उसका बुक रिव्यू के बारे में बताओ. उसमें एक या दो चीज़ जो आपने उस बुक से अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया और उस इंप्लीमेंट का रिजल्ट क्या है. अगर बुक नहीं पढ़ते तो क्यों नहीं पढ़ते, आपके रीडिंग हैबिट क्यों नहीं डेवलप किया, राइटिंग हैबिट क्यों नहीं डेवलप किया. इन एब्सेंस ऑफ दीज क्वालिटीज, हाउ वुड यू एक्ट लाइक ए लीडर व्हेन यू हैव नो क्वालिटीज ऑफ दिस नेचर, जहाँ पे आप एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट नहीं कर पाते अपने स्पेयर टाइम के साथ, सोते हो तो कैसे होगा, है ना. तो उसी तरह से टीवी में क्या सीरियल देखते हो, क्या सास बहू सीरियल देखते हो, या कोई नॉलेज वर्धन का नेट जियो देख रहे हो, या कोई स्टैट न्यूज़ ग्लोबल देख रहे हो, मिलिट्री अफेयर्स देख रहे हो, या डिस्कशंस देख रहे हो. डिस्कशन देख रहे हो तो किस टाइप का देखते हो, चिक्का चिल्ली वाला देखते हो अर्णब गोस्वामी की टाइप से, या कोई बढ़िया वाला देखते हो, कहाँ से देखते हो, है ना. फॉर एग्जाम्पल वियॉन है, पालकी शर्मा उपाध्याय फर्स्ट पोस्ट का, या कोई और है, जो भी है. एंड हाउ डू यू मेक योर ओपिनियन अबाउट दिस, हाउ डू यू एनालाइज थिंग्स. तो टीवी वॉचिंग हैबिट, सोशल मीडिया में क्या देखते हो, कच्चा बादाम देखते हो या काम की चीज़ देखते हो, काम की चीज़ देखते हो तो कौन से चैनल को देखते हो, कौन से सोशल मीडिया चैनल को देखते हो, अपने करंट अफेयर्स के लिए क्या देखते हो, डिफेंस के लिए क्या देखते हो. समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ. सो उसको डिटेल में करना ना. इसको नोट करना जो पिछले पॉइंट है. अब कुछ गड्ढे जो कैंडिडेट्स गड़बड़ कर देते हैं, इसको आप देखो कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हो, तो मेक श्योर यू अवॉइड देम एंड मेक श्योर यू ऑथेंटिक, है ना. तो पहला, गिविंग जेनरिक हॉबीज लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, कुकिंग, गार्डनिंग, करता कुछ नहीं है, विदाउट डेप्थ और स्टोरी बिहाइंड इट. लिसनिंग टू म्यूजिक, वो ऐसे फालतू का गाना लगा के सुनता कभी कभी, उसको बोलते मेरा हॉबी है. कोई सीरियस हॉबी नहीं, कोई आर्टिस्ट के नाम पता नहीं, कोई किसी का सिंगिंग का स्टाइल पता नहीं, कुछ नहीं, ऐसे हवा में बोल दिया, है ना. गार्डनिंग, गमले में 2 पौधे लगे, उसमें कभी कभी पीने वाला पानी का बचा हुआ डाल दिया, बोलते गार्डनिंग है. कुकिंग, मैगी बनाता, कुकिंग हॉबी है. ये सब एक मुखौटा है. आइदर यू डेवलप ऑन द ईजिएस्ट टू डेवलप इज आइदर बुक रीडिंग शुरू कर दो, डायरी राइटिंग शुरू कर दो, रीडिंग शुरू कर दो, कोई फिजिकल स्पोर्ट्स एंड गेम्स शुरू कर दो, एंड देन से कि मैंने सर स्टार्ट किया पिछले 6 महीने से, बजाय कि हवा में कुछ भी मार देने से. यू मस्ट अवॉइड ब्लफिंग हॉबी विच यू नो वेरी लिटिल अबाउट. ऐसी कुछ भी, दिस स्टैम्प कलेक्शन, 7 स्टैम्प है, सारे इंडिया के स्टैम्प है, और बोल दो मेरा स्टैम्प कलेक्शन है. हवा में कॉइन कलेक्शन है, हवा में नहीं मारना, क्योंकि आपके ऊपर जो भी आप बोलोगे या लिखोगे उसके ऊपर सवाल होगा, और सवाल में आप फंस जाओगे. इट इज़ लाइक पुलिस जब कुछ बोलते हो तो इंटरोगेट करता है, तूने ये बोला था, ये तो है ही नहीं. सो यहाँ पे भी आपको प्रोबिंग क्वेश्चन के थ्रू सवाल किया जाएगा, वहाँ पे आप अटक जाओगे, सतह पे प्याज के छिलके की तरह आवाज़ करोगे, डेप्थ नहीं मिलेगा. समझ में आया. नेक्स्ट इज सेइंग आई डोंट प्ले स्पोर्ट्स. यार आप फौज में आने वाले हो, फिजिकली एंगेजिंग होने वाला है, और आपको स्पोर्ट्स ही नहीं खेलते हो, कुछ भी नहीं करते हो, आप सिर्फ किताबी कीड़े देखते हो, टीवी देखते हो, सोशल मीडिया, और खेलते हो तो मोबाइल पे फुटबॉल खेलते हो, गोल्फ खेलते हो. मोबाइल पे खेलना, फौजी बनने वाले हो. सो इफ योर आंसर इज आई डोंट प्ले स्पोर्ट्स,
इसका मतलब है आप फिजिकली बहुत इनएक्टिव है, आपका PQ फिजिकल क्वेश्चन बहुत ही इनएक्टिव है। ऐसा बंदा फौज में आ जाएगा तो एकेडमी का ट्रेनिंग ही नहीं झेल पाएगा, और उसको TAT में लिखता मेरा हीरो दौड़ के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल था। इट्स फैंटेसी। जब आप खुद नहीं करते तो आपका कागज का हीरो क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको लगता है कागज का हीरो बढ़िया बढ़िया काम करेगा तो साइक इम्प्रेस हो जाएगा। दैट्स नॉट द वे। सो सेइंग आई डोंट नो स्पोर्ट्स मे नॉट बी वेरी राइट। उस CIQ में स्पोर्ट्स के कॉलम को ब्लैंक छोड़ना गड़बड़ हो जाएगा। उसके बजाय और कुछ ना हो तो जो कैजुअल गेम खेलते हो कि मैं सर टाइम पास के लिए शाम को 2 घंटे क्रिकेट खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, वॉलीबॉल खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, हॉकी खेलता हूँ या दौड़ने जाता हूँ, rather than leaving it blank. Leaving it blank, first of all, don't leave it blank in your life also. Do it some physical activities. आपने जिंदगी भर इसी शरीर के अंदर रहना है तो इस शरीर के ऊपर तो काम करना पड़ेगा ना। आपका घर कितना भी बड़ा हो लेकिन आपका शरीर बीमार हो जाए तो घर के अंदर रहोगे, शरीर के अंदर रहोगे? अच्छे घर के अंदर बीमार शरीर से रहना पड़ेगा। सो you're going into the armed forces, you will be ruthlessly trained on the physical domain and you cannot say I don't do anything physically. So ध्यान रखना. Next is giving unrealistic or highly disciplined daily routine you can't defend. आपका रूटीन ऑन ए वर्किंग डे एंड ऑन ए हॉलीडे आप अक्षय कुमार टाइप दे देते हो कि भैया अक्षय कुमार के मैं 4 बजे उठता हूँ, 8 बजे सो जाता हूँ और ये करता हूँ वो करता हूँ। अनरियलिस्टिक। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? देखो यार, आप जो रूटीन देते हो इट हैज़ टू बी फॉलो करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। हवा में बना के आप एकदम रैम्बो बन रहे हो, वो नहीं बनेगा। यू कैन नॉट डिफेंड इट। जब वो पूछेगा चीज़ों को तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। सो डोंट गिव एनी अनरियलिस्टिक और हाईली डिसिप्लिन थिंग व्हेन यू आर नॉट। बी रियलिस्टिक, बी ट्रूथफुल, एंड जहाँ लगता है कि गड़बड़ है उसको पहले से चेंज कर लो एंड देन यू कैन से सर ऑफ लेट आई चेंज इट, मैं आजकल ये भी करना शुरू कर दिया, जो भी है फालतू का नहीं। कोटिंग ओनली एकेडमिक रीडिंग, बुक रीडिंग के नाम से सिर्फ एकेडमिक टेक्स्ट बुक पढ़ता हूँ, वो भी टेस्ट से पहले, दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट हॉबी। वो तो आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट है एंड दैट शोज कि आपका जो इंटेलिजेंस है वो बड़ा लिमिटेड है। एकेडमिक इंटेलिजेंस से ऊपर कुछ काम नहीं कर रहे हो एंड मे नॉट बी टेकन वेरी फेवरेबली टू यू। सो इन चीज़ों को आप अवॉइड करो। नाउ देखते हैं कि मैं आपको कुछ सेल्फ असेसमेंट, खुद को एसेस करने के लिए इस CIQ में मैं आपको कुछ पॉइंटर्स दूंगा। उस पॉइंटर्स में आपको बॉक्स मार्क करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे आ रहे हो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये CIQ आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सो सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर CIQ फॉर स्पेयर टाइम हॉबीज एंड इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, राइट। सो जब आप हॉबी की बात करते हो तो पहला है हॉबी आइडेंटिफिकेशन और उस हॉबी के पीछे का मोटिवेशन। तो इसके अंदर तो 3 पॉइंट देता हूँ। Can you clearly name at least one genuine hobby that you actively pursue? क्या आप सोचो, अगर मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर हूं, अंदर से गहराई से सोचो, क्या आप क्लियरली एक जेन्यून हॉबी को लिस्ट कर सकते हो जो तुम एक्टिवली परस्यू करते हो, या आपको झूठ बोलना पड़ेगा या आपको सट्टा मारना पड़ेगा? सोच के देखो। ये आपको SSB में बोलने के लिए खुद को तो जानना पड़ेगा ना। नेक्स्ट इज, डिड यू इनिशिएटेड दिस हॉबी योरसेल्फ और अंडर द पीयर प्रेशर और प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स? क्या ये हॉबी आपने स्वतः अपनी मर्जी से लिया था या किसी पीयर प्रेशर से लिया था? और लिया था तो कब लिया था? उम्र क्या थी आपकी? कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ और आज उसका क्या स्तर है? सो दैट इज सेकेंड। एंड थर्ड इज, can you explain why you chose this hobby and what it gives you? ये हॉबी आपने क्यों चूज किया और ये हॉबी के इन्वॉल्वमेंट से आपको क्या मिलता है? मेंटल पीस मिलता है, थ्रिल मिलता है, आपके क्रिएटिव स्किल्स को हाईलाइट करता है, या आपके एक पैशन को डायरेक्शन देता है? क्या देता है? एक्सप्लेन करो जो भी आप बोलने वाले हो या जो भी आप CIQ में लिखने वाले हो, है ना। अगर आपका जेन्यून हॉबी होगा तो आप ये दे सकते हो, बट अगर आप फेक करने वाले हो आपको इन सवालों से मुश्किल होगा। ये प्रोबिंग क्वेश्चन बन जाएगा आपका, राइट। नेक्स्ट इज डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी। क्योंकि वो हॉबी है, पैशन है, तो नेचुरली उसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। तो आप हैव यू बीन परस्यूइंग दिस हॉबी फॉर ए कंसिस्टेंट ड्यूरेशन, कंसिस्टेंट लंबे ड्यूरेशन के लिए, या सिर्फ SSB आने से 2 वीक पहले शुरू किया या 1 महीने पहले किया ताकि मैं SSB में कुछ बोल पाऊँ? अगर सेकंड कैटेगरी है और फिर ये तो मजबूरी है, हॉबी नहीं है, मजबूरी है ना। तो इसका जवाब देना, कैन यू टॉक अबाउट एनी प्रोग्रेशन और अचीवमेंट इन दिस हॉबी? जो भी आपका हॉबी है जिसमें आप इन्वॉल्व हो, किस लेवल ऑफ स्किल्स में आपने पहुंच चुके हो
किस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, आपका क्रिएशन क्या है, एंड व्हाट इज द अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस इन दैट डोमेन। इसको थोड़ा एलाबोरेट करो, प्रोबिंग क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट इज, डू यू एक्टिवली एंगेज विथ कम्युनिटी और प्लेटफॉर्म कंसर्निंग योर हॉबी, या हवा में बोल रहे हो। मतलब अगर हॉबी को परस्यू कर रहे हो, डांस करते हो तो कोई डांस क्लब में गए हो, या कोई पार्टिसिपेशन करते हो, या कुछ करते हो, या ऐसे घर पे बाथरूम में नाचते हो और उसी को बोल दिया मेरा हॉबी बाथरूम सिंगर हूँ, बताना है ना, इसका जवाब देना। ये है डेप्थन का। थर्ड इज गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लेते हैं। कैन यू लिस्ट एटलीस्ट वन इंडिविजुअल और वन टीम स्पोर्ट दैट यू हैव प्लेड। नाउ फौज में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स से ज़्यादा टीम स्पोर्ट्स को अहमियत दिया जाता है, बिकॉज टीम स्पोर्ट्स में आपका इंटरपर्सनल स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। अगर आप फायरिंग करते हो तो अकेला फायर करते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स टेक और क्या, स्क्वाश खेलते हो तो वो भी एक आदमी के साथ खेलते हो, है ना। लेकिन अगर आप फुटबॉल खेलते हो, अगर आप हॉकी खेलते हो, अगर आप वॉलीबॉल खेलते हो, देयर इज अ टीम इन्वॉल्व। सो टीम इन्वॉल्वमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्लैश होता है। सो डेफिनेटली आपके स्किल्स का डेवलपमेंट टीम स्पोर्ट्स पे ज़्यादा होता है rather than इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में कि आप शूटिंग कर रहे हो, है ना। सो नेक्स्ट इज, do you have any school/college level participation or formal regular play to share, or any achievement or any certification or any district level achievement or whatever, state level, district level, whatever। अगर वो है तो डेफिनेटली उसको हाईलाइट करो, और अगर नहीं है बताओ भैया मैं तो ऐसे टोटल का खेलता था टाइम पास के लिए, बट किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई बात नहीं, बट कंसिस्टेंसी रखो अभी भी फिजिकल फिटनेस के लिए और अपने आप को एक मेंटल स्टेट को बैलेंस करने के लिए। Did you ever take a leadership role, captain, coordinator in the games/sports that you play? तो आपने अगर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या अदरवाइज सोसाइटी में, क्लब्स में कोई लीडरशिप रोल किया है, कोऑर्डिनेटर हो गया, कैप्टन हो गया, टीम मैनेजमेंट करना हो गया, या एडमिनिस्ट्रेशन देखना हो गया, या टीम को मोटिवेट करने वाले हो गए, कोई रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लिया है तो दीज आर ऑल योर स्किल्स दैट यू बीन एबल टू gather through this hobbies/interests and sports. Next is social interaction and teamwork, क्योंकि आपको स्पोर्ट्स एंड गेम्स में इंटरेक्शन होता है, स्पेशली टीम गेम्स में। तो आपके बारे में, डू यू रेगुलरली प्ले engage in group activities with family or neighbors, है ना। उसमें CIQ में है what activities you engage in family, वो दही हांडी में ले लिया, या कहीं सोसाइटी के स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं उसमें पार्ट ले लिया, या कुछ हो गया, तो क्या टाइप की एक्टिविटी आप फैमिलीज के साथ या सोशल एंगेजमेंट करते हो उसके बारे में। पहले आपका स्कूल, कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, अभी है समाज के लेवल पे, है ना। नेक्स्ट इज, कैन यू शेयर एन एग्जाम्पल वेयर यू लर्नड और कॉन्ट्रीब्यूटेड एज अ टीम मेंबर थ्रू प्ले और हॉबी। मतलब आपके कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान से टीम को फायदा हुआ, समाज को फायदा हुआ, आपका स्पेसिफिक अगर हो तो बताओ। कोई आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, कोई पूरा कंप्लीट, पूरा किसी चीज़ को प्लान से लेके एग्जीक्यूशन तक आपने किया, या आपने कोई इवेंट ऐसा ऑर्गेनाइज किया जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप किया, कुछ किया जिसमें सबका भला हुआ, व्हाटएवर, राइट। नेक्स्ट इज रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स। अगर नहीं पढ़ते हो, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते, आपको पता नहीं करना है। अगर आपका राइटिंग स्किल्स खराब है तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया तो क्यों नहीं किया, फिर क्यों उम्मीद लगते हो आप सेलेक्ट हो जाओगे, है ना। किस टाइप के मैगजीन्स पढ़ते हो करंट अफेयर्स के लिए, जरूर उसमें बताना। कैन यू नेम एटलीस्ट वन रीजन, बुक, आर्टिकल और टॉपिक दैट जेन्युइनली इम्पैक्टेड यू। कोई ऐसा पीस ऑफ वर्क जिसने आपको सॉलिडली इम्पैक्ट किया हो, आपकी सोच को मोल्ड किया हो, वो हो तो जरूर बताना। डू यू एंगेज इन एनी राइटिंग, है ना। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग लिखते हो, पोइट्री लिखते हो, ऑनलाइन पोस्ट लिखते हो, रिपोर्ट्स लिखते हो, या कुछ और करते हो, या कुछ नहीं करते हो। नहीं करते तो क्यों नहीं करते हो, सवाल आएगा, राइट। नेक्स्ट इज, डू यू हैव ए रीडिंग हैबिट इवन इफ इट इज ऑनलाइन, न्यूज़, ब्लॉग, मिलिट्री फॉरम। अगर है तो वो क्या है और कब से शुरू कर रहे हो, और उसको पढ़ने से आपको क्या फायदा हुआ है, इसको जरा लिस्ट करो, राइट। नेक्स्ट इज टीवी एंड कंटेंट कंजप्शन। टीवी में आप क्या देखते हो, सोशल मीडिया में किस टाइप के कंटेंट को कंज्यूम करते हो, क्या वो एंटरटेनमेंट है या ओनली एंटरटेनमेंट है, वल्गर है, लस्ट से भरा हुआ है, या वो पर्सनल ग्रोथ में मदद कर रहा है और आपके एम और एस्पिरेशन को पाने में मदद कर रहा है, जैसे कि SSB इंटरव्यू में जा रहे हो। कैन यू लिस्ट फ्यू प्रोडक्टिव शोज
documentary that you watch, for example Nat Geo military channel, UPSC oblique current affairs के channel, या खान सर के चैनल, या पवनीत सिंह के चैनल, या गणेश प्रसाद के चैनल, या स्टडी IQ के चैनल, जो भी आपको बताना आप बताओ। और अगर वो बोलते मैं देखता हूँ तो आपके जवाब में वो दिखना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज I'm aware of the difference. Are you aware of the difference between recreational and addictive screen use? Recreational is थोड़ा देर के लिए 15-20 मिनट आधा घंटे के लिए कुछ देख लिया। एडिक्टिव इज आप पागल ही हो चुके हो, आप एडिक्टिव हो चुके हो, आपका पढ़ाई उड़ाई सब जाके आप टिकटॉक ही देखते रहते हो। तो आपका जो टाइमिंग है वो रिक्रेशनल है, तो रिक्रेशनल का टाइमिंग कितना, और एडिक्टिव है तो कितना बुरी तरह से आप एडिक्टेड हो और क्यों उससे छुटकारा नहीं मिल रहा। अगर आप खुद को ही नहीं छुटकारा पा रहा तो अफसर बन के आप कैसे दूसरों को मोटिवेट करोगे, जरूर बताना। कैन यू एक्सप्लेन हाउ योर व्यूइंग चॉइसेस रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनालिटी? आप जिस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हो उस कंजम्पशन से आपके विचारों में, आपके भावनाओं में, आपके चरित्र में क्या फेवरेबल बदलाव हो रहा है, और वो आपके व्यक्तित्व में किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, आपकी सोच में किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, वो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, GTO में किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, किस टाइप के कंटेंट को आप कंज्यूम करते हो और उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ रहा है और आपकी सोच में क्या पड़ रहा है। इसके बारे में एलाबोरेट मैं आगे बनाऊंगा, कैसे कंटेंट आपके सोच को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। नेक्स्ट इज, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, डेली रूटीन क्लैरिटी। डेली रूटीन का क्लैरिटी कि दिन में मैं कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे सोता हूँ, उसके बीच में क्या करता हूँ, SSB की तैयारी के लिए कितना लगा रहा हूँ, फिजिकल के लिए कितना लगा रहा हूँ, है ना। कैन यू डिस्क्राइब योर टिपिकल वर्किंग डे इन डिटेल, है ना। अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, उसके बीच में आप क्या क्या करते हो उसका जरा डिटेल में, कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, उसके बीच की सारी एक्टिविटीज़ को लिस्ट करने के लिए बोलते हैं, आपको पता है, तो जरा यहाँ पे भी लिस्ट करना। कैन यू डिस्क्राइब ए वीकेंड और हॉलीडे रूटीन दैट इंक्लूड्स वैरायटी एंड सेल्फ ग्रोथ? तो आप अपना वीकेंड या छुट्टी में क्या एक्टिविटीज़ करते हो, कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, उसके बीच में क्या एक्टिविटीज़ करते हो, उसमें सेल्फ के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या एक्टिविटीज़ करते हो, वेदर इट एज फिजिकल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, इमोशनल लेवल और दिस लेवल ऑफ वैल्यू। एंड आप अपने SSB की प्रिपरेशन को किस तरह से इस रूटीन में इंटीग्रेट किया, उसका डिटेल। अगर आपका करंट अफेयर्स, GK, नॉलेज अबाउट सेल्फ वीक है तो सवाल आएगा तुम बोल तो रहे ये सब करता हूँ बट दिख क्यों नहीं रहा। सो ध्यान रखना, है ना। डज योर रूटीन शो टाइम मैनेजमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, या आपका डिस्ट्रैक्टेड व्यक्ति हो, कंफर्ट जोन में पड़े हो, लेजी हो, इनएक्शन में हो, कोई एक्टिविटी एफर्ट नहीं कर रहे हो बट लक्ष्य पाना चाहते हो, ये तो मुंगेरी लाल के सपने हो जाएंगे। तो जरूर बताना क्या समझ में आया। आठवां है पर्सनालिटी सिग्नल। आपके इन जवाबों से आपके व्यक्तित्व के बारे में साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर को क्या पता चलेगा आपके बारे में। डू योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट एनी ऑफिसर लाइक क्वालिटी, लाइक फॉर एग्जांपल इनिशिएटिव, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सोशल एडजस्टमेंट, सोशल इनिशिएटिव, कॉन्फिडेंस, failure, bouncing back after failure, your mental stamina, physical stamina, कुछ चीज़ों को दर्शाता है या ऐसे ही हवा में है, जरा चेक करके मुझे बताना। डज योर प्रोफाइल लुक वेल राउंडेड मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर? एक बैलेंस पर्सनालिटी दिख रहा है, या एक ऐसा लड़का या लड़की जो रेकमेंड होना चाहता है लेकिन पता ही नहीं क्यों होने की, जिसकी क्या काबिलियत है, जिसको अपने सेल्फ के बारे में नहीं पता, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में नहीं पता, जिसका लॉजिकल थिंकिंग स्किल डेवलप नहीं है, जिसका प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप नहीं है, जिसका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डेवलप नहीं है, जिसका डिसीजन मेकिंग डेवलप नहीं है, जिसका सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ रेगुलेशन नहीं है, इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, एम्पैथी नहीं है, कंपैशन नहीं है, बट रेकमेंड होना चाहता है, तो बताना क्या है, राइट। Can you defend all the information that you provide with examples or honesty with clarity? या आपने कुछ ऐसे चीज़ें लिख दिया, टिप्स एंड ट्रिक्स, हाइड कोर क्वालिटी, सुसाइडल टेंडेंसी छुपा दो, कुछ भी छुपा के जा रहे हो, या will you be able to defend everything that you claim? If you can defend everything that you claim, you are good. नाउ अगर आपने जो क्वेश्चंस मैंने अभी पूछे इन सब में मोस्टली आपको अच्छे परफॉर्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं अच्छा कर सकता हूँ, आपके स्कोर्स अच्छे आ रहे हैं, देन यू आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड वेल फॉर दिस सेक्शन, दैट इज CIQ एंड हॉबीज एंड इंटरेस्ट। और अगर आपको जवाब देने में तकलीफ हो रहा है, देन यू हैव टू एडजस्ट योर एक्टिविटीज एंड यू हैव टू प्रिपेयर टू एक्सप्लेन द गैप्स विथ ऑथेंटिसिटी।
हवा में सट्टा मारोगे, मर फंस जाओगे। और अगर ये करने में आपको कैसे करना समझ में नहीं आ रहा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन आवर रेगुलर क्लासेस, वी विल बी एनीवे डूइंग इट, बहुत डेप्थ में किया जाएगा, आपको एक अंदाजा तो लग ही रहा है। तो दिस इज वंस अगेन दी CIQ ऑन हॉबीज एंड इंटरेस्ट। एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, कानों से सुनना और देखना कि आपके बारे में आप क्या समझ रहे हो इस डोमेन में। That gives me a good idea about your education, family, and related matters. Now, please tell me how you spend your spare time. What are your hobbies and interests? When and how did you choose these? How do you compare your level now in respect to your hobbies since the time you started? What are the games and sports in which you have participated in school or college, with family members and with neighborhood friends? Your daily routine, both on a working day and on a holiday, and about your reading and writing habits and TV watching habits. सो इसके ऊपर दोबारा एक बार कोशिश करो। अगर पहले नहीं बनाया तो वीडियो को पॉज करो, इसके ऊपर एक जवाब बना के मेरे को वीडियो भेजो मेरे नंबर पे, एंड वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट, राइट। सो ज़रूर इस वीडियो से मुझे कमेंट लिख के बताना कि इस वीडियो को देखने से आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है नहीं है, किस तरह से ये वीडियो दूसरे कोचिंग के एडवाइस जहाँ पे वो रेडीमेड बोलते थे इसको रट के लिख दो, उससे क्या डिफरेंस लग रहा है और इसमें क्या चैलेंजेस दिख रहा है, और कहीं पे इसमें सपोर्ट चाहिए तो आप वो भी मुझे बताना। एंड बाय द टाइम बिफोर आई एंड, सो AFOCP के ऑनलाइन क्लासेस आर अवेलेबल, जो कि 4 वीक्स, 8 वीक्स एंड 12 वीक्स का कॉम्पोजिट बैच है, कंसिस्टिंग ऑफ बोथ SML एंड SSB, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट होगा जिसमें कि 12 TAT, WAT, SRT, एवरीथिंग का इन डिटेल एनालिसिस आपको वीडियो बेस्ड फीडबैक के साथ मिलेगा। पर्सनल इंटरव्यूज अवेलेबल विद वीडियो फीडबैक, एंड एवरी सैटरडे वी हैव फ्री डेमो क्लास। एंड इसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी विद गिवन नंबर 9090099035. Send me a WhatsApp and I'll share you the details. Kindly share this information with your friends so that they also benefit, right? अगर आपने AFOCP के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट, कमेंट इट, इस वीडियो को भी कमेंट करना, और वीडियो यूजफुल लगे तो उसको जरूर शेयर करना, you know, that's the only thing that I'm requesting you. The more you do it, the more motivation is to me. So next video series is ready, but I'll publish it once I get adequate views on this number, and आप इसको जरूर क्या बोलते हैं सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।